Okay. So in the last class we had talked about transport of oxygen, oxygen dissociation curve. हाँ, and उसमें से we had not talked about carbon dioxide in detail. And two things which needed to be studied more, that is, one is Bohr effect and one is Halden effect. We have known that, we know that basically what happens, there is a curve known as oxygen dissociation curve. I'm trying to open that. इसको खोल के नहीं रखा हूँ, I'm opening that. So you just to revise what happened last day. This is your lungs. Lungs has got alveoli. So what happens? You breathe inside and this becomes oxygen rich. इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ. So यहाँ पे oxygen enters. Oxygen is here. 1.5% of the oxygen is dissolved in blood and 98.5% is attached to hemoglobin inside red blood cells. Hemoglobin, red blood cells, it's inside red blood cells. So this goes to the left atrium or left auricle of the heart. This is oxygen rich blood. And वहां से heart is pumping it to the tissues. Systemic capillary से tissues में आ जाता है. So still it is oxygen rich. Now it comes near the tissues. ये सब tissues है यहाँ पे. Are you able to see this? Abha? Yes, sir. Yes, sir. So this is oxygen rich region. It comes to this place, or यहाँ पे what happens? These tissues, they utilize oxygen. Here oxygen is less. Now because of the because of high partial pressure of CO2 over here, what happens? Hemoglobin releases, dissociates. It releases oxygen for these tissues in response to high H plus that is acid. H plus positive protons, H plus from carbonic acid. High carbon dioxide है, उसीलिए carbonic acid form करता है. So therefore, this is known as Bohr's effect. In response to high H plus and CO2 concentration near the tissues, hemoglobin releases oxygen. This is Bohr's effect. याद रहेगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन H प्लस ज्यादा है. इसके कारण क्या होता है? हेमोग्लोबिन ये जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, 4 ऑक्सीजन, उसको छोड़ देता है फॉर द टिश्यूज. टिश्यू यूटिलाइज करके इट मेक्स CO2. अब CO2 का 7% क्या होता है? इट इज डिजॉल्व्ड. 23% हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है. ओके. एंड 70% it forms bicarbonate, sodium bicarbonate. जैसे इनो खाए हो कभी? इनो? Yes, sir. तो इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है. वो गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में देने से भट 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 करके निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है. तो बेसिकली वो गैस तुम अंदर तुम जो लेते हो, अंदर में बाइकार्बोनेट क्या होता है? इट इज बेसिकली अ बेस. वो एसिड को पकड़ लेता है बाइकार्बोनेट. एंड तुम्हारा वो एसिड उसको कम कर देता है. तो इट इज फॉर्म्ड, फिर उसको ढका रहता है, वो निकलता है. दैट इज नथिंग बट दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा लिए हो, वो निकल जाता है बाहर. दिस इज द बाइकार्बोनेट विच यू हैव टेकन. Bicarbonate, 70% carbon dioxide gets converted into bicarbonate. 23% is converted into carboxyhemoglobin and 7% directly ये है. Now what it happens, it goes through the
राइट टू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में घुस जाता है फ्रॉम योर हार्ट. ओके, मतलब राइट एट्रियम से घुस जाता है एंड देन इट इज सेंट टू द लंग्स. डुअल सर्कुलेशन पढ़ाया हूं. इट सेंट टू द लंग्स. लंग्स, व्हाट हैपेंस नियर द लंग्स, यहां पे क्या हुआ, इनसाइड द लंग्स ऑक्सीजन इज रिच. ठीक है, the oxygen is rich. So what happens in response to high oxygen concentration, carbon dioxide is released from the hemoglobin and the bicarbonate into the lungs. हेमोग्लोबिन छोड़ देता है, बाइकार्बोनेट भी छोड़ देता है. दिस इज नोन एज हेल्डन इफेक्ट. एकदम उल्टा ऑफ बोर इफेक्ट. ओके, यस नो, Yes, sir. एकदम उल्टा होता है. So this is how the whole actual respiration takes place. Now you had seen last class able to see this picture. This is a Yes, sir. oxygen dissociation curve. Here you have the partial pressure of oxygen and this is percent saturation of hemoglobin. So hemoglobin, one hemoglobin molecule can bind 4 oxygen atoms. So at 10 millimeter mercury partial oxygen pressure, you have something like 10% saturation. At say 20% में 35% saturation होता है. So basically what is this saturation? 50% saturation means 2 खाली है, 2 खाली है और 2 में ऑक्सीजन बाइंड किया हुआ है. 4 हाथ है हेमोग्लोबिन का. So in 2 it has bound and in 2 it is empty. That is 50% saturation. So 10% कैसे होता है? 10% is एक में कुछ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, वो एक एवरेज लेके 10% होता है. एक तो ब्लड सेल नहीं है, मतलब लाखों करोड़ों हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. सो उसके कारण व्हाट यू सी फाइंड ओवर हियर इज दैट यू गेट एन एवरेज. सो इन रीडिंग में सो एट 20 you have something like 35% and that is this happens in deoxygenated blood. Your skeletal muscles, ये skeletal जो muscles जो है वो contraction के time में वहां पे partial pressure is something like 20 and at that time it is 35% saturated. अच्छा, जब तुम रेस्ट में हो, स्केलेटल मसल नहीं, तुम्हारा वेन्स में व्हेन यू आर एट रेस्ट एट 40 प्रेशर में यू हैव गॉट समथिंग लाइक 75% सैचुरेशन. सो 3 मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है, एक मॉलिक्यूल को छोड़ देता है तुम्हारे वेन में व्हेन यू आर रेस्टिंग. एक्सरसाइज के टाइम में सब ये सब छोड़ के इट यू हैव ओनली 35%. वो छोड़ देता है, 2 मॉलिक्यूल छोड़ देता है ऑलरेडी एंड पार्शियल प्रेशर गिर जाता है. मतलब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उस रीजन का कम है तो हेमोग्लोबिन उस समय ऑक्सीजन छोड़ देता है. और इन सिस्टेमिक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास 100% सैचुरेशन है. जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, हेमोग्लोबिन और भी ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है. क्लियर? यस नो? Yes, sir. ओके. Now what happens, अगर ब्लड का पीएच गिर गया मतलब इट इज बिकमिंग मोर एसिडिक. ओके, इफ द पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स, नॉर्मल ब्लड पीएच 7.4 में ऐसे यू सी दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व 35% एट 30, ये ऐसे रहता है.
ठीक है, फॉर सम रीजन बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग से, हाँ एक्सरसाइजिंग में क्या हुआ, कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, हाँ, एंड H प्लस आयंस बढ़ जाता है, सो उसके लिए बिकम्स मोर एसिडिक, लैक्टिक एसिड जमता है, ब्लड पीएच बिकम्स लो. दिस मीन्स दैट रीजन नीड्स मोर ऑक्सीजन. फॉर दैट रीजन एट यहाँ पे इट वॉज 20 में you had at 20 you had something like 35% saturation. वो क्या हुआ, वो 30 में ही इट बिकम्स राइट में शिफ्ट हो गया. 30 में ही यू गेट 35%, पहले 20 में 35 था, अब 30 में 35 हो गया. सो व्हाट डू यू सी, द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट. दिस मींस और भी ऑक्सीजन छोड़ दिया. 30 में तो ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड किया करना चाहिए था, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड नहीं किया. वो 30 में बढ़ जाना चाहिए था, इधर इधर वो बढ़ा नहीं, लेकिन वो कम ही है. 30 में यहां तक होना चाहिए, 50% सेचुरेशन हो जाना चाहिए था. 50% सेचुरेशन नहीं, वही 35 ही है. हाँ, क्योंकि वो ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हैज बीन रिलीज फॉर द सेल जहां पे ऑक्सीजन का जरूरत है, बिकॉज पीएच बढ़ गया. तो दिस इज इफेक्ट ऑफ पीएच. और अगर पीएच बढ़ गया तो और भी ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है. द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, और पीएच कम हो गया तो कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट. ये क्लियर है? तो Yes, sir. सेम चीज होता है ऑक्सीजन के लिए. हाई ब्लड पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट. कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. सेम थिंग हैपेंस विथ टेम्परेचर. टेम्परेचर में टेम्परेचर बढ़ गया मतलब बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है, बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट. और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. अब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब तो हम लोग देखते हैं. हम लोग वी हैव सीन, देखो पल्मोनरी कैपिलरी में क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2. इसको थोड़ा बड़ा करते हैं. दिख रहा है ये? आर यू एबल टू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके. ऑक्सीजन लिया लंग्स में, ऑक्सीजन गया गया गया. दिस इज द कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी वॉल, मतलब आर्टरी वेन का जो पल्मोनरी का कैपिलरी है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनसाइड, इट गोज इनसाइड रेड ब्लड सेल्स. हेमोग्लोबिन बाउंड टू H प्लस, यहां से बाइंड करता है HbO2 प्लस, H प्लस छोड़ देता है. दिस H प्लस इट जॉइंस विथ बाइकार्बोनेट आयंस एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. ठीक है, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेट इसको तोड़ देता है CO2 प्लस H2O करके. तो यहाँ पे जब CO2 निकल जाता है, हाँ, यहाँ पे नेगेटिव आयंस HCO3 अगर अंदर में घुस गया, बाइकार्बोनेट क्या था, HCO3 माइनस. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, यहाँ पे यू हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, सो माइनस चार्ज इज इंक्रीज्ड ओवर हियर. हाँ, सो उसको काउंटर करने के लिए सम क्लोराइड Cl माइनस इट गोज आउट, नर्व इंपल्स की तरह सम क्लोराइड गोज आउट, बिकॉज यहाँ पे माइनस ज्यादा हो गया. सो दिस इज नोन एज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट. ठीक है, यस नो? So please explain again. अच्छा अच्छा, देखो ऑक्सीजन गया, वो ये लंग्स में क्या हो रहा है, हाँ ऑक्सीजन गया, ब्लड के अंदर गया, आरबीसी के अंदर, इट बाइंड्स विथ हेमोग्लोबिन, H प्लस को डिस्प्लेस कर दिया एंड इट फॉर्म्स H प्लस आयंस. एट द सेम टाइम यहाँ पे H प्लस आयंस को काउंटर करने के लिए HCO3 बाइकार्बोनेट अंदर घुस जाता है, HCO3 माइनस. HCO3 minus is a got lots of negative charge. ठीक है, so
अंदर में अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो सेल बिकम्स वेरी नेगेटिव, उसको करने के लिए सम माइनस क्लोराइड इट गोज आउटसाइड, बिकॉज क्लोराइड इज ऑल्सो माइनस चार्ज, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, और ये बाइकार्बोनेट का बाद में आफ्टर व्हेन इट इज ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये H+ के साथ HCO3 इट फॉर्म्स बाइकार्बोनेट, and in the presence of carbonic anhydrase it's broken up into CO2 plus H2O. Some of them are bound to hemoglobin, is CO2 छोड़ देता है, CO2 is going out. This is known as reverse chlorine shift, chloride shift. समझ में आया? और CO2 goes and it is exhaled out. Is it clear? Yes, sir. ये तो धीरे से यस सर क्यों है? और एक बार बता दूं? हाँ सर. Okay. In the lungs, how oxygen and carbon dioxide is exchanged? क्या होता है? Oxygen comes inside and carbon dioxide goes outside. How it happens? Oxygen is come inside, ठीक है? O2 is going inside. It is binding with hemoglobin. Partial pressure of oxygen is high. So what happens? HbH होता है, वो H को release कर देता है, and HbO2 is there. ठीक है? And now this HbO2, this is oxygenated hemoglobin. ये पूरा टिश्यू में ये घूम के आ जाता है थ्रू आउट योर बॉडी. फिर what happens? It is rich in carbon dioxide, HbCO2. Some amount is bound to hemoglobin, carboxyhemoglobin. यहाँ पे partial pressure of oxygen is high, so carbon dioxide is released because of Haldane effect. ये क्लियर है इतना यहाँ पे? Yes, sir. This H+, it binds with bicarbonate and forms carbonic acid. इस H+ को तो निकालना है. How will it be removed? It has to bind with bicarbonate. So for that reason what happens, lot of negative charged bicarbonate बाहर से RBC के अंदर आ जाता है. So RBC becomes more negative. तो इसको काउंटर करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज तो सेम रहना चाहिए. Some negatively charged chloride ions, it goes outside. That is reverse chloride shift बोलते हैं. ये समझ में आया अभी? Yes, sir. और Yes, क्या sir. होता है? ये H2 और CO2 जाके फिर बाहर एक्सेल हो जाता है. हेल्डन इफेक्ट. हाई O2 का प्रेशर से क्या होता है? CO2 को निकाल देता है, हेमोग्लोबिन से निकाल देता है, एंड बाइकार्बोनेट को छोड़ देता है, ऐसे पानी बन जाता है वो. इट हैपेंस इन द लंग्स. नाउ इन द टिश्यूज में क्या होता है? यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. ये टिश्यू है, दिस इज ब्लड. ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया. सो यू हैव, एकदम उल्टा होता है. HbO2 ये H+ को ले लेता है, उल्टा होता है. HbO2 फॉर्म करता है, HbH फॉर्म करता है एंड ऑक्सीजन को छोड़ देता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज नीडेड बाय द टिश्यू सेल. बोर्स इफेक्ट. और क्या छोड़ने के बाद क्या है? लॉट्स ऑफ बाइकार्बोनेट ज्यादा हो जाता है, हो रहा है. हाँ, तो ये बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गया तो ये बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाता है. बाहर निकल जाने से क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाता है. सो बाहर से सम क्लोरीन अंदर घुस जाता है. एकदम उल्टा होता है. दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट. रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में निकल जाता है. यहाँ पे क्लोराइड क्या कर रहा है? अंदर आ रहा है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया, इट बाइंड्स विद H2O और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एनहाइड्रेस फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, जो कि टूट जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एंड H+. H+ को HbO2 ले लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, HbH फॉर्म करता है. एंड इस ये बाइकार्बोनेट यहाँ पे ज्यादा हो गया, इन बाहर निकल जाता है. बाइकार्बोनेट तो सेल के अंदर रख नहीं सकते. सो मोर क्लोराइड स्टार्ट्स टू कम इनसाइड. ये क्लियर है?
Yes, sir. ओके, बस यही पढ़ाना था आज। बोर्ड्स इफेक्ट, हेल्डेन्स इफेक्ट। नेक्स्ट डे और एक फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आई विल लुक एट द सिलेबस। क्वेश्चन है कोई आभा, सुनंदा? नो सर। सुनंदा नहीं है ना क्वेश्चन कोई? नहीं सर। सर ओके। टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग देखे नहीं इसमें। हाँ, टेम्परेचर में सेम चीज हो जाता है। इट द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट। जैसे पीएच कम होने से जो होता है, कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट। So you have to study, these are the factors affecting oxygen dissociation curve. ठीक है? pH, Yes. temperature, oxygen concentration and carbon dioxide concentration. ओके, Yes, sir. ठीक है। फिर अगले दिन वो लोग दीघा से वापस आ जाए, फिर चालू कर देंगे। आ जाएंगे 2-3 दिन में।